بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی مارچ کا مزار قائد کراچی سے آغاز ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ میں عوام کا سمندر امڈ آیا ہے۔ مارچ کراچی سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے۔ ہر شخص کے لبوں پر بس ایک ہی نعرہ گو عمران گو ہے۔ جالے پرجوش کراچی میں جگہ جگہ پارٹی پرچم اور قد آویزاں پینافلیکس آویزاں ہیں۔ ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے۔ جیالوں کے حوصلے بلند ہیں۔ نرسری پہنچنے پر قافلوں کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں۔ پرجوش نعروں سے شرکا کا استقبال کیا گیا۔ بلاول کے مارچ کے دوران شارع فیصل کو مکمل طور پر کھلا رکھا گیا۔ مارچ سٹار گیٹ سے ہو کر ملیر ہالٹ سے اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ملیر ہالٹ پر بھی قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور پرجوش نعروں سے شرکا کا استقبال کیا گیا۔ لانگ مارچ ملک کے 23 اضلاع اور 37 شہروں کے گزرے گی اور بلاول بھٹو کی قیادت میں 1600 کلومیٹر کا طویل سفر طے کر کے کراچی سے براستہ حیدرآباد، سکھر، رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، لاہور، گجرانوالہ سے ہوتا ہوا 8 مارچ کو راولپنڈی سے اسلام آباد پہنچے گا۔ مہنگائی اور وفاقی حکومت کی پالیسی کے خلاف پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آغاز کراچی سے ہو گیا۔ مارچ میں شرکت کے لیے جالے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فیروز کی اس رپورٹ میں۔ کپتان حکمران کے خلاف طبلِ جنگ، جیالوں نے شہر اقتدار کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مزار قائد پر جیالے امڈ آئے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں مارچ میں کراچی سمیت کے مختلف شہروں کے کارکن شامل ہیں۔ جیالوں کی جانب سے پارٹی ترانوں پر رقص اور وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ جیالوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ عوامی مارچ موجودہ حکمرانوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے جب بھی اس ملک پر آن چاہیے جمہوریت کو نقصان پہنچا تو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ کھڑے ہوئے۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد تک جائے گا اور اسلام آباد پر دھرنا دے گا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کو ہم اتار کر ہی وہاں سے واپس آئیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ کراچی سے براستہ لاہور پھر اسلام آباد پہنچے گا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عوامی لانگ مارچ کے آغاز میں ہی گو سلیکٹڈ گو کا نعرہ لگا دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عوام سے خطاب میں کہا کہ عوامی لانگ مارچ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حکومت کی نااہلی کے باعث عوام احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کراچی والے موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وقت آ گیا ہے کٹ پتلی کو جانا ہے۔ موجودہ حکومت ملک کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری کے مزار قائد پر پہنچنے پر ان کا بہت زیادہ استقبال کیا گیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے پرجوش نعرے لگائے۔ پی پی کے کارکنوں کی فلک شگاف نعروں سے مزار قائد کے اطراف کا علاقہ گونج اٹھا۔ ہمارا عوامی مارچ کے کال پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ پہ کراچی کے عوام مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ احتجاج کرے، وہ مطالبہ کرے۔ نااہل وزیر اعظم جس نے نہ صرف کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کے جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے۔ 3 سال بہت ہو چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے۔ بس اب سلیکٹڈ کو جانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی باقی سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس جدوجہد میں، اس محنت میں صف اول کا کردار ادا کیے ہیں۔ چھوٹی لاڈلی بہن کی بھائی سے محبت۔ عوامی مارچ میں شرکت سے قبل بلاول ہاؤس میں شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی
आसिफा भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इमाम जामिन बांधा। आपको बता रहे हैं, छोटी लाडली बहन की भाई से मोहब्बत है। अवामी मार्च में शिरकत से कबल बिलावल हाउस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इमाम जामिन बांधा। आप ये देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये छोटी लाडली बहन है, भाई से मोहब्बत का इजहार है। अवामी मार्च में शिरकत से कबल बिलावल हाउस में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी अपने भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इमाम जामिन बांध रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी लॉन्ग मार्च के 38 मुतालबात के निकात जारी कर दिए हैं। हुकूमत की हर सतह पर ईमानदाराना और आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएं। 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत का निज़ाम चलाया जाए। मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया के जुदा जुदा इख्तियारात के असूलों की पासदारी की जाए। पार्लियामेंट और कमेटी सिस्टम का इस्तेहकाम और पायदारी की जाए। आज़ादाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाए। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। एक आज़ाद और काबिल एहतसाब अदलिया को मुमकिन बनाया जाए। मुल्क भर के तमाम मजदूरों को सिंध की तर्ज पर यूनियन साजी का हक दिया जाए। तलबा के लिए यूनियन साजी का हक और तालिबे इल्मों की फलाह बहबूद के अमूर में इनका फैसला साज किरदार तस्लीम किया जाए। आज़ादी इजहार के हक को यकीनी बनाया जाए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाज़ाब्ता और गैर एलानिया किस्म के सेंसरशिप का खात्मा किया जाए। मज़ीद साइबर क्राइम कानून के तमाम गैर मुनसिफाना और जाबराना दफात का खात्मा किया जाए। ख़ातीन के खिलाफ तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद, तेज़ाब के हमलों और जिनसी तौर पर हरासा करने के कवानीन पर लाजमी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के बीच कनी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जनूबी पंजाब के अवाम की शनाख्त और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जनूबी पंजाब के नए सूबे का क़याम और इस इलाके को नज़रअंदाज किए जाने और इसकी पसमानदगी का खात्मा किया जाए। कच्ची आबादियों और इंतहा पसंदा इलाकों को रेगुलराइज करने और इनको बुनियादी शहरी सहूलतें फराहम करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार की जाए। लॉन्ग मार्च के शिरकत से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मार्च शुरू किया गया। हुकूमत के ताबूत लॉन्ग मार्च में आखिरी कील साबित होगा। ये काफ़िले मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद पहुँचेगा। कराची से ये लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों से मिलते हुए उनका पैगाम उन लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस नाअहल हुकूमत, इस बेस हुकूमत के खात्मे के लिए इनकी ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे यहाँ कराची में ये पूरा रोड दोनों तरफ लाखों की तादाद में लोग चेयरमैन साहब के साथ शुरू हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन साहब लोगों के साथ पास जाएंगे और ये काफिला इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला अपने मुतालिका से कराची से आगाज़ हो गया था। अब ये अपने मंजिल की जानिब रवां दवा है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में अवाम का समुंदर उमड़ आया है। मार्च कराची से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। हर शख्स के लबों पर बस एक ही नारा है, गो इमरान गो। जियारे पुरजोश, कराची में जगह जगह पार्टी परचम और कद आवेजा पेनाफ्लिक्स आवेजा हैं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। जियालों के हौसले बुलंद हैं और नर्सरी पहुंचने पर काफिलों का वालहाना खैर मकदम भी किया गया। कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जोश व खरोश इस वक्त जारी है। नारों से शुरका का इस्तकबाल किया गया है। बिलावल के मार्च के दौरान शाहराह फैसल को मुकम्मल तौर पर खुला रखा गया था। मार्च टारगेट से होकर मलिर हॉल्ट तक अपने मंजिल की जानिब रवा दवा है। मलिर हॉल्ट पर भी कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई थीं और पुरजोश नारों से शुरका का इस्तकबाल किया गया था। लॉन्ग मार्च मुल्क के 23 अजला और 37 शहरों से गुजरेगा और बिलावल भुट्टो की क़यादत में 1600 किलोमीटर तवील सफ़र तय करके कराची से बरास्ता हैदराबाद, सखर, रहीम यार खान,
बहावलपुर और मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला से होता हुआ ये 8 मार्च को रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुंचेगा। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने इस रैली की क़यादत की है और रैली को स्टार्ट करके उन्होंने जब ये रैली चलने लगी है खिताब में गो सिलेक्टेड गो के नारे से इस लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो कि अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। आप एक बड़ी तादाद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं, ये कारकुनान है, कारकुनान की बड़ी तादाद है, पार्टी परचम हाथ में लिए बसों में, मोटरसाइकिलों पे, कुछ पैदल भी हैं और कंटेनर के साथ भी हैं। बहुत ज़्यादा कारकुनान की जो तादाद है ये अवामी मार्च में, ये अवाम का समुंदर है जो कि ठाठे मारता हुआ इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। ये कराची से इस्लामाबाद जाने तक का ये सफ़र है जो आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टोटल 37 शहर हैं जहां से गुजरते हुए इस कारवां ने इस्लामाबाद की जानिब जाना है। इस्लामाबाद में रुकेगी ये जाके, ये बिलावल भुट्टो की क़यादत में ये अवामी मार्च है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी मार्च है। भूख है, बहुत ज़्यादा महंगाई में डूबे अवाम है, गरीब अवाम पिस गई है, ये उनके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ आज ये मार्च लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अपने काफ़िले के साथ रवा दवा है। ये इस्लामाबाद की जानिब से, ये कराची से इस्लामाबाद की ये रैली है जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में रुकते हुए जाएगी। 37 मकामात हैं, 37 शहर हैं जहाँ से ये रैली रुकते हुए जाएगी। कैंप्स लगाए गए हैं। आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अपने काफ़िले के साथ रवा दवा हैं। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की लॉन्ग मार्च में शिरकत की गई है और 37 शहरों से ये गुजरेगा ये कारवां और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हम देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया गया। हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है जो कि कराची से शुरू हुई है और ये इस्लामाबाद पहुँचेगी और रास्तों में मुख्तलिफ़ शहरों में कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ ये लोग स्टे भी करेंगे, खिताब भी होगा। जगह जगह जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा जमा होगी वहाँ रुक कर खिताब भी किया जाएगा शुरका के साथ, शुरका का लहू भी गरमाया जाएगा। एक साउंड सिस्टम ट्रक भी इनके हमरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है जिस कंटेनर में वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उसी कंटेनर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी इसी में सफ़र का आगाज़ किया था और उसी कंटेनर में आज बिलावल भुट्टो जरदारी उनके ख्वाबों की ताबीर को सच करने के लिए आज वो भी एक मुहिम पर निकले हैं। एक बार फिर से मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कामरान, एक ये बताइएगा कि कारवां तो है वो रवा दवा है, अवामी लॉन्ग मार्च में जो शिरकत के लिए आने वाले हैं कारकुनान, उनके लिए खाने पीने और रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है? जी बिल्कुल, इसके हवाले से बाकायदा तौर पे जो कराची के जो कराची तंजीम के जो ज़िले हैं तमाम अजला के हिसाब से कमेटियाँ बाकायदा तरतीब दी गई थी। बाकायदा तौर पे कारकुनान की सहूलियात के लिए कंटेनर्स भी बनाए गए हैं। उन कंटेनर्स के अंदर के अंदर भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो तमाम चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त तो काफिला जो है वो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पे इस वक्त रवा दवा है। इस वक्त तो जो खाने पीने की या दिगर जो ज़रूरियात है वो इस वक्त कोई ऐसी सूरत नहीं पहुंची, लेकिन ये काफिला जो आगे अपनी मंजिल की जानिब पहुंचेगा, अपने ठट्टा के मकाम पे पहुंचेगा, वहाँ पे ही जो फिर खेमे वगैरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनान के लिए बनाए गए खेमा बस्ती बाकायदा तौर पर तैयार की गई है। बड़े बड़े कंटेनर्स है, उस कंटेनर्स के अंदर कारकुनान के लिए सहूलत मौजूद है। एक कंटेनर्स के अंदर तकरीबन 25 से 26 लोगों की एक बैक वक्त रहने की सहूलत है। कारकुनान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो नफसियाती ताल्लुक है, जो लीडरशिप के साथ जो एक मोहब्बत का जो इज़हार है कारकुनान का, वो नजर आ रहा है। कारकुनान जो है इस वक्त स्टील मिल के मकान पे सड़कों का कारकुनान गाड़ियों से उतर के नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। कारकुनान बड़े पुरजोश हैं। महंगाई, बेरोजगारी, रोज भर की महंगाई के खिलाफ, गैस की कीमतों और अद्वियात की जो दवाओं में जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उसके खिलाफ कारकुनान बड़े पोलिटिकली मोटिवेटेड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से मोबिलाइजेशन कैंपेन भी चलाई गई थी
اب وہ جو موبلائزیشن جو کمپین چلائی گئی تھی اس کا اثر ہمیں اس عوامی مارچ میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوامی مارچ کیوں نکالا جا رہا ہے, کس کے خلاف نکالا جا رہا ہے اور اس عوامی مارچ کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے یہ تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس عوامی مارچ کا حصہ ہیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہیں. اچھا محمد کامران, یہ بتائیے گا کہ خواتین کی بھی بڑی تعداد سننے میں آئی ہے, خواتین, بچے, بوڑھے بڑے سب ہی اس ریلی میں شریک ہیں, تو خواتین کے لیے بھی الگ سے کوئی سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے؟ جی بالکل, خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, پیپلز یوتھ اور دیگر جو ذیلی تنظیمیں ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ خواتین کے جو شعبہ خواتین باقاعدہ طور پہ متحرک کے منظم ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ جس طرح پوری تنظیم کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں دیگر تمام تر انتظامات کے لیے, اسی طرح شعبہ خواتین کے لیے بھی خصوصی طور پہ انتظامات ہیں. شعبہ خواتین کی کراچی ڈویژن کی صدر شاہدہ رحمانی ہے اور اس کے بعد کراچی شعبہ خواتین کی جو کراچی ڈویژن کے بعد ضلع وائز شعبہ خواتین کی ضلع کی تنظیم ہے, سٹی ایریا لیول اور یوتھ لیول تک خواتین تنظیم جو ہے وہ متحرک ہے اور باقاعدہ طور پر تنظیم سازی جو ہے مکمل کی گئی تھی. تو ایک تنظیمی جو ڈھانچہ ہے اس کے بنیاد پہ باقاعدہ طور پہ کمیٹیاں بنائی گئی تھی, اس کمیٹیوں کے تحت ہی خواتین کے لیے انتظامات کیے گئے. محمد کامران ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ریلی جو ہے اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے. ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ خواتین کے لیے بھی الگ سے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں کیونکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں. پارٹی پرچموں کے ساتھ ایک بڑی تعداد اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ اس ریلی میں شریک ہے. محمد کامران سے ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا کامران, یہ بھی بتائیے گا کہ متبادل راستے بتا دیے گئے ہیں, کوئی ٹریفک کی صورتحال کے بارے میں بھی بتائیے گا, ٹریفک کی روانگی تو نہیں متاثر ہے؟ یہ ہے کہ حالانکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی تحریک کا ایک طویل ترین لانگ مارچ کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہمارے ساتھ ہی بسر میں میرا سب کے ساتھ جو دوسرا روڈ ہے وہ جانے والا روڈ ہے, ٹریفک جو ہے وہ اس وقت رواں دواں ہے. کیمرے کی آنکھ ہمیں دکھانے میں مشکل آ رہی ہے, ہم کوشش کریں گے آپ کو مناظر دکھا سکے. دوسرا جو روڈ ہے اس روڈ میں ٹریفک جو ہے وہ جا رہی ہے, رواں دواں ہے. اس طرف جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ رکا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑیاں ہیں اس وقت جو نارمل جو ٹریفک جو صورتحال ہے بالکل ہمیں یہاں پہ متاثر نظر نہیں آتی. جو روڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ ہے وہ اس وقت یہاں پہ ٹھہرا ہوا, جبکہ جو دوسرا روڈ ہے اس میں جو عام جو ٹریفک ہے جو معمول کے حساب سے جس طرح ٹریفک چلتی ہے اسی طرح ہمیں یہاں پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سیکورٹی اور ٹریفک کے حوالے سے حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا تھا. کامران یہ بتائیے گا کہ کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ سے پیپلز پیرا میڈیکل سٹاف کے کارکنان بھی تھے جو کہ ایمبولینسز بھی ان کے ساتھ تھی, کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے یہ ایمبولینس کی بھی ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ جی بالکل, ایمبولینس اس وقت ہمارے آس پاس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. بالکل ہی عقب میں میرے سامنے بالکل جو ہے حصہ ہے, کیمرہ مین اس کو دکھانے میں مشکلات پیش آئیں گی. لائن سے یہاں پہ پیرامیڈیکل کی ایمبولینسز ہیں وہ دکھائیں. میں گزارش کروں گا رمیز سے کیمرہ مین کہ وہ مناظر دکھائیں جو آگے ایمبولینسز ہیں جو اس قافلے میں شریک ہے. قافلہ اس وقت یہاں پہ رکا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد دور تک ہمیں قافلہ نظر آ رہا ہے اور اس قافلے کے اندر ہمیں جو فری جو طبی جو امداد ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ پیپلز پیرا میڈیکل کے جو ورکرز ہیں وہ اس میں باقاعدہ طور پہ رضاکارانہ طور پہ عوامی مارچ کے لیے حصہ لے رہے ہیں اور اس میں فری کیمپنگ کے لیے, فری ادویات کے لیے, فری طبی امداد دینے کے لیے مکمل طور پہ تیار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے شاندار لانگ مارچ کو دیکھ کر مخالفین کے ہوش اڑ گئے. موجودہ حکومت کی نیندیں ابھی سے حرام ہو چکی ہیں. عمران خان کا اب گھر جانا ٹھہر چکا ہے. پی ٹی آئی ناکام مارچ کے باعث کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بلاول بھٹو کے ساتھ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب آ رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں جالے سڑکوں پر ہیں. پی ٹی آئی والوں, مارچ دیکھنا ہو تو بلاول کے مارچ کا نظارہ کر لو. عمران خان بلاول بھٹو کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے بوریا بستر سمیٹ لیں. چیئرمین صاحب, کراچی سے اسلام آباد تک آپ کا قافلہ جہاں جہاں جائے گا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے
जियाले नजर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग नजर आएंगे और इमरान खान साहब को बता दिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की आवाम में सच्ची मोहब्बत किसी के लिए तो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। ऐसे नारे लगाए कि इमरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि पूरे मुल्क में मार्च होगा, हुकूमत को घर जाना होगा। जियाले रहनुमा ने बिलावल भुट्टो के हक में नारे भी लगाए। आज आपने आगाज में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होके इस बात पे मोहर लगा दी जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमरान खान तू इस मुल्क के ऊपर एक बोझ बन गया है और अब हम कराची से निकल के तुझे पाकिस्तान से भगा के दम लेंगे, तेरी हुकूमत को खत्म करके अवामी राज कायम करेंगे। आपने आज कायदे आजम के मज़ार पे इकट्ठे होके कराची शहर की तारीख भी दोहराई है और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान भर में मार्च होगा और ये हुकूमत घर जाएगी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ चेयरमैन को बुलाते हुए, अब आया आया, अब आया आया। इमरान खान सुन लो, बुज़दार सुन लो, अब आया आया, अब छाया छाया, अब आया आया। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, कहीं भी है, बलूचिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का पीटीआई रहनुमाओं के खिताब पर रद्द अमल सामने आया है। इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध की आवाम ने पीटीआई की डुगडुगी मार्च को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई का मार्च महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की हिमायत में निकला जा रहा है। मार्च में शामिल मरीद अपने मुर्शिद का दीदार करने के लिए आए हैं। सिंध की आवाम की हिमायत और वोट हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। डुगडुगी मार्च के मतदारों को चेहरे अभी से उतर गए हैं और सिंध के लोग इनसे आटा चोरी, चीनी चोरी, NFC अवार्ड चोरी, पानी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, अद्वियात चोरियों का हिसाब मांग रहे हैं। शहर में CNG स्टेशन मुसलसल तीसरे रोज भी बंद है। CNG सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुई सर्जन गैस कंपनी की जानिब से जुम्मे की सुबह 8 बजे कराची समेत सिंध भर के तमाम CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल की गई थी। आज मुसलसल तीसरा रोज़ है, शहर में तमाम CNG स्टेशन जो है वो बंद है और सुई गैस हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत इस सेक्टर को जो है वो गैस की फराहमी बंद की गई है। CNG सेक्टर को जो फराहमी गैस बंद कर दी गई थी, जिस पर CNG एसोसिएशन की जानिब से जो है वो इज़हार बरहमी किया गया था और उनका ये कहना था कि सुई गैस कंपनी की जानिब से ये यकीन दहानी जो है वो बारहा कराई गई थी कि अब CNG सेक्टर को तसलसल के साथ CNG की फराहमी जारी रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद 2 हफ्ते में मुसलसल जो है वो दूसरी बार गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते भी 3 दिन जो है वो फराहमी बंद रखी गई। इस हफ्ते भी इसी किस्म की सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब रक्षा और टैक्सी ड्राइवर जो है उनका यही कहना है कि CNG इस वक्त जो है वो मुसलसल जो है वो बंदिश का सामना करना पड़ा है। 2.5 महीने की तवील बंदिश रही, उसके बाद फिर 3 दिन बंदिश रही। तो अब जो सूरत हाल है उसमें तमाम तर जो रक्षा टैक्सी ड्राइवर थे उनका यही कहना है कि गाड़ियाँ रक्षों पर जो पेट्रोल पर चलाने पर जो है वो मजबूर है, क्योंकि जो CNG की बंदिश की जाती है ऐसे में कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही मुतालबा है कि CNG को अगर तसलसल के साथ गैस की फराहमी जारी रखी जाए तो कारोबार में। हबीब, हमें अपडेट करने के लिए। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी ताहाल ना हो सकी, जबकि आटे की भी सप्लाई महदूद की गई है। चीनी की फराहमी कब तक यकीनी बनाई जाएगी, ये जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। वसीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी ताहाल ना हो सकी, जबकि आटे की भी सप्लाई महदूद कर दी गई है। चीनी की फराहमी कब तक यकीनी बनाई जाएगी, ये भी अब अपने नाज़रीन को बताएंगे। फिल वक्त आपको बताते हैं कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की जो सूरत हाल है वो ये है कि चीनी की फराहमी ताहाल यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। आटे की भी सप्लाई महदूद कर दी गई है। वजूहात क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुरनोश खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं वो उनको भी मायूसी से लौटना पड़ा है। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर यह हाल है कि चीनी की फराहमी ताहाल नहीं हो सकी है, जबकि आटे की भी सप्लाई की बात की जाए तो वो भी महदूद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ अब मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा।
आज इस वक्त मैं कराची के जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे अकब में लिखा हुआ है शुगर, लेकिन यहाँ पे चीनी मौजूद नहीं है। और बताया जा रहा है यूटिलिटी ज़राए के मुताबिक कि तकरीबन 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजर चुका है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी मौजूद नहीं है। और यूटिलिटी ज़राए का बताना यह है कि चीनी का टेंडर तो हो गया है, लेकिन अब यह है इतलात के 1 तारीख से चीनी जो है उसकी फरहमी मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर शुरू हो जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी भी 3 दिन मज़ीद जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं होगी, क्योंकि चीनी जो है वो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं है और ना ही गोदाम में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम दीगर अशिया की, तो आटे के हवाले से भी बताया जा रहा है कि आटे की सप्लाई जो है वो की तो जा रही है, लेकिन मुकर्ररा जो मिकदार के मुताबिक पहले जो माजी के मुकाबले में जो आटा सप्लाई किया जाता था वो अब मिकदार कम कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी आटा मौजूद होता है यूटिलिटी स्टोर्स पर, कभी मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ हम तेल घी की बात करें तो तेल घी भी जो है वो दस्तयाब तो है, लेकिन उसकी भी तादाद जो है वो कम है। शहरी जो है बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जिसमें तेल घी आटा चीनी की ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन जब उन्हें चीनी और आटा ही दस्तयाब नहीं हो पाता तो उनको मायूसी होती है, क्योंकि आम बाज़ारों में, आम इलाकों में जनरल स्टोर्स पर चीनी और आटा और तेल घी जो है वो उनकी कीमतें जो है वो ज़्यादा होती हैं। शहरियों का कहना होता है कि वो दूर दराज से आते हैं, वक्त निकाल कर यूटिलिटी स्टोर्स हैं, लेकिन जब ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सिक्योरिटी पर 1467 अफसरान व एहलकार तैनात किए गए हैं। जानिसार बेनज़ीर के कारकुन सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग, जियालो ने अवामी मार्च के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। मज़ार कायद से शुरू होने वाला अवामी लॉन्ग मार्च 34 शहरों से होता हुआ 10 रोज में अपनी मंजिल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचेगा। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। सिक्योरिटी पर 1467 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिसमें 316 स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज भी शामिल हैं, जबकि मार्च में जानिसारान बेनज़ीर के कारकुन सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। मार्च के सिलसिले में बिलावल के लिए कंटेनर को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। सी व्यू के खान पार्क में जारी पौधों की नुमाइश का आज आखिरी रोज है। नुमाइश में शहरियों का रश लगा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पौधों की खरीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा रबिया खान। रबिया, बताइएगा। सी व्यू ए खान पार्क में लगने वाली शहर की सबसे बड़ी फूलों की नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। चौथे और आखिरी रोज़ शहरियों की बहुत बड़ी तादाद नुमाइश में पहुंची हुई है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो मेरे कब में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी पौधे ख़रीदने में जो है वो मसरूफ़ नज़र आती है। मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो हज़ारों इक़साम के पौधे यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे उसमें बोनसाई हो, आपको अगर अपने लॉन के लिए कोई प्लांट लेना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बोनसाई भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत से इंडोर प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद है। हर किस्म की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। चंद 100 से लेके हज़ारों रुपए की तादाद में जो है वो यहाँ पर पौधे जो है वो लाए गए हैं। ना सिर्फ पौधे बल्कि उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, गार्डनिंग की चीज़ें हैं, चाहे वो पॉट्स हों, दीगर जो है वो औजार हों, वो भी यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त के लिए रखे गए हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद आज भी रुक कर रही है। आज आखिरी रोज़ है और रात 10 बजे तक जो नुमाइश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो अभी तक अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो आज रात 10 बजे तक नुमाइश में आ सकते हैं। सालाना नुमाइश थी 4 रोज़ा, जिसका आज रबिया खान। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।